हरे कृष्णा। सेशन स्टार्ट करते हैं प्रेस के साथ। अब मेरे बात बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की सेशन में। आज हम भगवत गीता 4th चैप्टर श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। इसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। Such a man of understanding acts with mind and intelligence perfectly controlled, gives up all sense of proprietorship over his possessions, and acts only for the bare necessities of life. Thus working, he is not affected by sinful reactions. ठीक है। ये 4th चैप्टर जो है, इसमें इसके स्टार्टिंग में हमने 3 टाइप्स ऑफ कर्मा देखा था, राइट। कर्मा, विकर्मा और अकर्मा। इसी का ये कंटिन्यूएशन है। यहाँ पे बता रहे हैं कि एक जो आइडियल डिवोटी है उसकी उनकी परिभाषा क्या है। एक बार वापस पढ़ते हैं। सच अ मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्ट्स विथ माइंड एंड इंटेलिजेंस परफेक्टली कंट्रोल्ड, gives up all sense of proprietorship over his possessions and acts only for the bare necessities of life.
thus working he is not affected by sinful reactions. ठीक है. So let's read the purport by Srila Prabhupada. A Krishna conscious person does not expect good or bad results in his activities. His mind and intelligence are fully controlled. He knows that because he is part and parcel of the Supreme, the part played by him as a part and parcel of the whole is not his own activity, but is only being done through him by the Supreme. When the hand moves, it does not move out of his own accord, but by the endeavor of the whole body. A Krishna conscious person is always dovetailed with the Supreme desire, for he has no desire for personal sense gratification. He moves exactly like a machine. As a machine part requires oiling and cleaning for maintenance, so a Krishna conscious man maintains himself by his work just to remain fit for action in the transcendental loving service of the Lord. He is therefore immune to all the reactions of his endeavors. Like an animal, he has no proprietorship even over his own body. A cruel proprietor of an animal sometimes kills the animal in his possession. Yet the animal does not protest, nor does it have any real independence. A Krishna conscious person fully engaged in self-realization has very little time to falsely possess any material object. For maintaining body and soul, he does not require unfair means of accumulating money. He does not therefore become contaminated by such material sins. He is free from all reaction to his action. ठीक है. तो ये श्लोक में जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक जो कृष्णा भावनावित पर्सन है, कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है, ही डज नॉट केयर अबाउट गुड और बैड रिजल्ट्स. ठीक है, वो जो भी कर रहा है, व्हाट इज़ द रिजल्ट, उसको ही डजंट केयर. राइट. सो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. तो अकर्मा क्या है, कोई रिकैप करना चाहेगा? व्हाट इज़ अकर्मा? हाँ, which is transcendental. So how do we identify if a karma what we are doing is transcendental or not? When we devote our work to Krishna. Okay. How? Free from the results. Free from the results. Okay. हाँ. It is for satisfaction of Lord Shri Krishna. Okay. Satisfaction of Lord Shri Krishna. ठीक है. फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि how do we understand कि हम जो कर रहे हैं is it satisfying Krishna or not? How do we understand? Through the Vedic, Hmm? the help of Guru. Okay. और Shastra. ओके. और भी चीज़ें डिस्कस किए थे, काफ़ी टाइम हो गया लगता है. गुरु शास्त्र. हाँ, गुरु साधु है शास्त्र, 3 चीज़ें हैं. ठीक है. सो एक रिकैप कर लेते हैं ताकि है ना सब वापस everyone is on the same page. ठीक है. ये 2 ही है क्या? ब्लैक कलर नहीं है क्या? ब्लैक कलर नहीं है? So, हमने टाइप्स ऑफ कर्मा डिस्कस किया था. ठीक है. So first the karma, second is vikarma, third is akarma. ठीक है. So हमने
से वन वर्ड दिया था, तो कर्मा इज ऑल गुड एक्शंस सैंक्शनड एज पर वेदास, ठीक है। विकर्मा इज ऑल बैड एक्शन, मतलब नॉट सैंक्शनड एज पर वेदास, ठीक है। अकर्मा इज ट्रांसेंडेंटल एक्शन, ठीक है। फिर हमने बात की थी अकर्मा इज लाइक एनी एक्टिविटी विच इज़ डन अंडर द गाइडेंस ऑफ एन अथॉरिटी, ठीक है। फिर हमने 12 अथॉरिटीज़ की बात की, 12 महाजन्स की बात की थी, आपको याद है? सो वी हैव 12 महाजन्स, ठीक है। कितना याद है लोगों को, बताइए। हाँ, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, यमराज, स्वयंभुवा मनु, जनक महाराज। मैं एक ऑर्डर में लिख रहा हूँ, आपको बताया था लास्ट टाइम। हाँ, ठीक है। सो यहाँ पे किससे स्टार्ट किया था? नारद मुनि। फोर कुमारास, ठीक है, 4 कुमार। भीष्मा, करता हूँ, 2 मिनट दो। और कौन थे? हाँ, सुखदेव गोस्वामी। एक और बचे। लिखा ना 10th। कौन है? जो भी बोलेगा उसको आज पार्टी मिलेगा। हाँ, याद है किसी को? हाँ हाँ, लॉर्ड कपिल, ठीक है। सो दीज आर द 12 महाजन्स, दीज आर द 12 अथॉरिटीज़। तो जो भी हम क्वालिटीज़ अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये सारे क्वालिटीज़ ये 12 महाजन्स में हैं, ठीक है। तो अभी आज जो भी श्लोक हमने पढ़ा, सो उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो एक क्वालिटी होता है एक प्योर डिवोटी में कि दे हैव नो सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो ये एक बार लिख लेते हैं, व्हाट इज़ प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है पता है आपको? ओनर, मतलब ये चीज़ मेरा है, ये पेन मेरा है, ये शर्ट मेरा है, ये शरीर मेरा है, तो डैट इज़ कॉल्ड प्रोप्राइटर, ठीक है। तो ये दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी आपको प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, ये इसलिए फेस करते हो क्योंकि हम सोचते हैं कि जो चीज़ें हैं सब मेरा है, आई एम द प्रोप्राइटर।
ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। अब में से कितने लोग मायापुर गए हो? तो कैसे गए हो मायापुर? ट्रेन। कितना घंटा लगता है? हाँ 28। नहीं आप तो कम बोल रहे हो। ओके ओके हाँ। सो इफ़ यू वांट टू गो टू मायापुर यू हैव टू टेक अ ट्रेन फ्रॉम CST, ठीक है। CST से आपको जाना पड़ेगा हावड़ा, ठीक है। ऑन एन एवरेज लगता है 32 to 36 आवर्स, ठीक है। 36 आवर्स पकड़ लो, ठीक है। ट्रेन से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे पहुँच के आप मायापुर नहीं पहुँचोगे, यहाँ से भी एक ट्रेन लेना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेन लोगे, फिर आप वहाँ से आप जाओगे, एक स्टेशन है नवदीप धाम करके, सो यहाँ तक जाने में अगेन मतलब अराउंड 5 आवर्स लगता है। सो इन ऑल इफ़ यू वांट टू गो टू मायापुर, ठीक है, और आप नॉर्मल रास्ते से जा रहे हो तो आपको 40 to 41 आवर्स लगेगा, ठीक है। तो ये सोच के ना बहुत डर लगता है कि भाई 41 आवर्स मतलब ऑलमोस्ट कितना 24 प्लस 2 डेज़, ऑलमोस्ट 2 डेज़। देख के सुन के बहुत डर लगता है कि कैसे जाएंगे हम लोग मायापुर, राइट। लेकिन बिलीव मी, आप एक बार स्टार्ट करोगे ना, आप कब पहुंच जाओगे आपको समझेगा नहीं, ठीक है। तो कोई बताया जाएगा वाई दिस हैपन्स लाइक दिस? इतना लंबा डिस्टेंस है बट फिर भी वो डिस्टेंस आपको लगेगा नहीं। आप कभी मायापुर जाओगे यहाँ से आपको लगेगा कि फटाफट पहुँच गए, ऐसा कुछ लगा ही नहीं 41 आवर्स। वाई इज इट लाइक दिस? हाँ, Because you'll probably be starting with devotees, your association of devotees will probably help them. yes, you will be traveling with devotees और So the time will feel like it's less time the actual time for travel. ठीक है, दैट्स अ गुड पॉइंट। और यस माता जी? The mode of going to Dham. मूड ऑफ गोइंग टू धाम, या मूड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और We have waited so much. सॉरी, We have waited so much. अच्छा यू हैव वेटेड सो मच। हाँ, डिज़ायर है जाने का मायापुर, सो वो डिज़ायर की वजह से हमें लगता है कि इजीली पहुंच जाए, ठीक है। आप लोगों ने जो बोला सही है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक वन पॉइंट, ठीक है। हाँ, Because of the sanction of the Lord. या दैट इज ऑल्सो देयर, यस। Like Krishna calling. कृष्णा कॉलिंग, I did not visit any dham, but I happened to be at the temple sometimes. ओके ओके। देखिए कैसा होता है कि व्हेन वी आर गोइंग टू मायापुर, ठीक है, हमें पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, ठीक है। सो वी विल टेक अ ट्रेन से, फॉर एग्जाम्पल गीतांजलि ट्रेन ले लिया आपने, तो आप देखो गीतांजलि उतना कंफर्टेबल ट्रेन नहीं है। वहाँ पे ना कोई भी चढ़ जाता है, कोई भी आ जाएगा, कैसे भी टाइप के लोग रहेंगे, बट स्टिल आपका पर्पस फिक्स है कि आपको पता है कि आपको मायापुर जाना है, तो यू विल नॉट फील एनी पेन, ठीक है। तो यही सेंस है ना डिवोटीज को होता है, ठीक है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू मायापुर यू नो कि ये जो ट्रेन जर्नी है दैट इज़ टेम्पररी। ये ट्रेन मेरा घर नहीं है, ये ट्रेन मेरा नहीं है, ये जो सीट है ये टेम्पररी है जो मेरा है, ठीक है। सो वी डोंट हैव दैट सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। अगर वही अगर समझो ट्रेन में बैठ के सोचते कि ये जो ट्रेन है ये मेरा है, ये जो सीट है ये मेरा ही है परमानेंटली, तो ये जो जर्नी होता था 41 आवर्स ये आप बेयर नहीं कर पाते थे। इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, बट बिकॉज यू नो दैट दिस इज़ जस्ट अ जर्नी, ठीक है, दिस इज़ जस्ट अ पाथ, दिस इज जस्ट अ पाथ लीडिंग टू माई एक्चुअल होम, इसके लिए हम इसको इजीली बेयर कर लेते हैं। सेम इज़ विद डिवोटीज, ठीक है। सो आवर लाइफ, ठीक है, हमें ये ह्यूमन बर्थ मिला है, ये बॉडी मिला है, जो भी फैसिलिटीज़ मिले हैं, दिस जस्ट अ काइंड ऑफ अ ट्रेन ऐसे बोल लो, ठीक है। इट्स अ जर्नी, वी आर इन दिस जर्नी, वी आर नॉट द प्रोप्राइटर, ठीक है।
तो हमें जो भी चीज़ें मिली, हमारा घर है, अपना परिवार है, हमारे माता पिता है, हस्बैंड वाइफ जो भी है, बच्चे हैं, दे आर जस्ट कंपेनियंस इन दिस जर्नी, ठीक है। वो उनके साथ एक्चुअली हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो जस्ट हमें मिल गए हैं, हमारा सीट है ना, मतलब बाजू में पड़ गया है, वैसा है, उसके लिए वो हमारे साथ जा रहे हैं। सो वी just have a very temporary relationship with them. So if you have this sense of that for everything Krishna is the proprietor and I am just a servant, जो भी चीज़ हमें दिया गया है, मैं सिर्फ देखभाल कर रहा हूँ वो चीज़ों का, तो then your journey will become very easy, ठीक है। तो ये श्लोक में प्रभुपाद जी पॉपुलर ने बताते कि जो भी शुद्ध भक्त होते हैं, they don't have any sense of proprietorship, वो कभी ये नहीं सोचते कि ये चीज़ मेरा है, ये मेरी है, whatever, ठीक है। तो ये जो 12 महाजन्स है जिनके बारे में हमने अभी चर्चा की है, इन सभी के लाइफ में ये चीज़ आपको दिखेगा, ठीक है। बट अगर आज के सेशन के लिए अगर मैं किसी के लाइफ में थोड़ा डिटेल में जाना चाहूँगा तो दैट इज़ सुखदेव गोस्वामी, ठीक है। तो सुखदेव गोस्वामी ही इज़ द सन ऑफ हुम, व्यास मुनि, ठीक है। तो इनका जो लाइफ स्टोरी है ये आपको पढ़ना चाहिए, इट्स गिवन इन द भागवतम। तो सुखदेव गोस्वामी जो थे, लाइक व्हेन ही वाज इन द वूम्ब ऑफ हिज मदर, ठीक है। तो नॉर्मली एक बच्चा कितने टाइम तक रहता है वूम्ब में? 9 months 10 days वैसा रहता है, ठीक है। सुखदेव गोस्वामी कितने साल थे, किसी को पता है? हाँ, ऑलमोस्ट 12-13 years ही वॉज देयर इन द वूम। और क्यों थे? उनके माता के घर में निकल ही नहीं रहते, क्यों नहीं निकल रहे थे? हाँ, यस। तो सुखदेव गोस्वामी जो है, ही वॉज सेल्फ रियलाइज राइट फ्रॉम द वूम। हमें कैसे, हमें बाहर आना पड़ता है, हमें ज्ञान लेना पड़ता है, वी हैव टू डू डिवोशनल सर्विस, तभी जाके हमें पता चलता है हमारा पोजीशन क्या है। बट सुखदेव गोस्वामी वॉज सो मच हाईली एलिवेटेड कि उनको गर्भ में ही पता था कि माया क्या है, कृष्णा क्या है, एवरीथिंग ही न्यू। सो वो उनको पता था, जैसे ही मैं बाहर आऊँगा, मेरे शास्त्रों में वर्णन है कि जब जब एक जीव माँ के गर्भ में होता है तो उसका जो पोजीशन है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है, वो ऐसे उल्टा रहता है और ऐसे हाथ पैर ऐसा बंधा हुआ रहता है, कहीं पे देख नहीं सकता है, कहीं पे हाथ पैर फैला नहीं सकता। तो इट्स अ वेरी अनकंफर्टेबल पोजीशन। तो वो जीव जब माँ के गर्भ में होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्लीज़ भगवान मुझे यहाँ से आज़ादी दे दो, प्लीज़ फ्री मी फ्रॉम दिस मिजरीज। मैं बाहर आते ही आपकी भक्ति करूँगा, शुद्ध भक्ति करूँगा। हर जीव यही प्रार्थना करता है, ये शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो बाहर निकलता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, वैसे ही माया उसे पकड़ लेती है। जैसे ही माया उनको पकड़ती है, सब चीज़ वो भूल जाता है। ये नॉलेज सुखदेव गोस्वामी जी को पहले से ही था। इसके लिए सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ से निकलना ही नहीं चाहते थे। वो सोच रहे थे कि ठीक है, अनकंफर्टेबल है, चलेगा, लेकिन मैं अंदर ही रहना चाहता हूँ। लेकिन अल्टीमेटली उनकी माँ को कष्ट हो रहा था। ये आप सोच सकते हो कि मतलब 13 साल का बच्चा हो जाएगा तो मतलब उनका जो वूम्ब है कितना एक्सपांड हो गया रहेगा। तो व्यास मुनि जो है वो बहुत परेशान हो गए थे। तो उन्होंने कृष्ण को बोला कि मेरा जो बेटा है वो उनकी माँ के गर्भ से निकल ही नहीं रहा है, आप कृपया करके कुछ कीजिए। सो देन कृष्णा ही वेंट, और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को अश्योरेंस दिया कि प्लीज़ यू कम आउट, आई गिव यू अश्योरेंस कि आपको माया कभी नहीं पकड़ेगी। तभी सुखदेव गोस्वामी ही केम आउट फ्रॉम द वूम, एंड एज सुन एज ही केम आउट, जैसे ही वो गर्भ से बाहर आए वैसे ही वो चले गए। वो फुल ग्रोन अप पर्सन बन चुके थे, 13 ईयर्स थे गर्भ में। तो जैसे ही बाहर निकले वैसे ही वेंट आउट, ही बिकेम परमहंस। तो अगर सुखदेव गोस्वामी का जो लाइफ है वो आप स्टडी करोगे तो ही वॉज अ वेरी ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी। उनके पास है ना कुछ नीड्स नहीं था। वो जहाँ पे उनको मतलब
भगवान प्रेरित करते थे वहाँ चले जाते थे. देयर वाज नो पर्टिकुलर, मतलब वो कभी कुछ प्लानिंग नहीं करते थे जैसे हम करते हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए. अभी यात्रा के लिए कितना हम प्लानिंग कर रहे हैं, कहाँ जाए हम, बाणगंगा जाए या कहाँ जाए. तो वैसे जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी कुछ प्लान नहीं करते. दे हैव 100% फेथ इन कृष्णा. उनको पता है कि कुछ भी हो कृष्णा विल टेक केयर ऑफ देम एंड दे आर रेडी टू टेक वॉट एवर कृष्णा गिव्स देम. सो कई बार हमारे लाइफ में भी हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें होती है जो बहुत आसानी से हमें मिल जाती है. ठीक है, ऐसे ही आप रास्ते पे जा रहे थे, अचानक से एक डिवोटी आ गए, आपको कार्ड दिया लाइट ऑफ भागवत और आप यहाँ पे आ गए. फिर यहाँ पे आ गए, आप बैठ रहे हो आराम से एसी हॉल में हो. फिर यहाँ से जाओगे, आप प्रसाद पाओगे, फिर दर्शन लोगे. सो ये सब बहुत ईजीली हो रहा है. जो भी चीज़ें बहुत ईजीली होती है वो चीज़ें, दोज थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मा. ठीक है, कहीं ना कहीं इन योर प्रीवियस लाइफ यू मस्ट हैव डन डिवोशनल सर्विस, यू मस्ट हैव प्लीज्ड सम डिवोटी, आइदर प्रीवियस लाइफ और दिस लाइफ. तभी जाके आपको ये चीज़ें ईजिली मिल रहा है. सो वी गो, इफ़ यू लीड आवर लाइफ एज पर आवर कर्मा, एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु, साधु एंड शास्त्र, तो चीज़ें भी आपको ईजिली मिल जाएंगी. तो आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ हिज ग्रेस अद्भुत हरि प्रभु जी. सो अद्भुत हरि प्रभु जी वॉज बॉर्न इन क्रोएशिया. ठीक है, अरे उनको जब इंडिया आना था, ही डिडंट नो एनीवन, किसी को भी नहीं, वो जानते नहीं थे इंडिया में. आजकल लोग कहीं बाहर जाते हैं तो कितना प्लानिंग करते हैं, वीज़ा निकालो, ये निकालो, उधर क्या है, पहले से गूगल करते हैं. फिर इंश्योरेंस भी ले लेते थे कि कुछ हो गया रास्ते पे तो इंश्योरेंस भी होना चाहिए. बहुत सारी चीज़ होती है. बट ही डिडंट नो एनीथिंग. ओनली थिंग ही हैड न्यू इज कृष्णा इज देयर, ही विल टेक केयर ऑफ. सो प्रभु जी सेड ही केम हियर. इवन टुडे ही डजंट नो कि क्या होने वाला है कल, ही डजंट नो. बट बिकॉज ही इज़ कम्प्लीटली सरेंडर्ड टू कृष्णा, सारे डिवोटीज खुद से जाते हैं उनके पास और जाके उनको प्रसाद देते हैं. जो भी चाहिए उनको, उनका जो डेली नीड्स है ना, उनको सामने से ही मिल जाता है. इनफैक्ट वो बोलते हैं कि उनको इतना प्रसाद मिलता है कि वो खुद ले ही नहीं सकते उतना, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उनको प्रसाद मिल जाता है. सो दैट इज़ अबाउट अ प्योर डिवोटी. सो एनीवन हु इज़ अ प्योर डिवोटी, उनको भगवान सामने से सब कुछ दे देते हैं. तो सुखदेव गोस्वामी जो थे वो भी सब जगह ऐसे ही जाते थे. ही डिडंट हैव एनी क्लोथ्स ऑन हिज बॉडी, ही यूज्ड टू जस्ट रोम अराउंड. और शास्त्रों में बताया गया कि वो एकदम बेयर मिनिमम लेते थे, जो भी उनका नीड्स है उतना ही वो लेते थे. तो शाम के टाइम पे वो किसी गृहस्थ के घर पे जाते थे, और उस ज़माने में हर गृहस्थ के घर पे गाय होती थी. तो गाय का जब वो दूध निकालने का टाइम होता है, शाम को निकालते हैं, तो उस टाइम जाते थे, उनको एक गिलास दूध देते थे, वो दूध लेके ही वॉज देयर. सो ही वॉज लाइक वेरी हैप्पी एंड ही वॉज जस्ट रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर. नोबडी न्यू अबाउट हिज ग्लोरीज. कोई जानता नहीं था सुखदेव गोस्वामी कौन है. उनको लगता था कि ये कोई आ गया ऐसे ही घूम रहा है. Who is this person? We don't know. तो तभी परीक्षित महाराज को श्राप मिला था, और परीक्षित महाराज गंगा नदी के किनारे गए थे 7 डेज फास्ट रखने के लिए. ठीक है, उनको पता चला कि 7 डेज में उनका मृत्यु हो जाएगा, तो वो फास्ट रखना स्टार्ट किया. और परीक्षित महाराज से मिलने बहुत सारे जो सेजेस है, जितने भी डिवोटीज़ है, डेमीगॉड्स है, सब आए थे वहाँ से उनसे मिलने. बिकॉज परीक्षित महाराज इज़ अ आइडियल किंग. उनको पता था कि परीक्षित महाराज के जाते ही कलयुग स्टार्ट हो जाएगा, कलयुग का जो इफेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा. तो जब वैसे बैठे थे तो तभी सुखदेव गोस्वामी उनके सामने आए. एंड सुखदेव गोस्वामी को देखते ही परीक्षित महाराज और इतने जो हज़ारों सेजेस थे सब दंडवत प्रणाम किए, उनको रिस्पेक्ट किया. तभी जाके लोगों को पता चला कि ये जो पर्सन है जो ऐसे ही घूम रहा है, इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, इज़ अ प्योर डिवोटी. तब सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का जो मतलब क्या बोलते हैं रिसाइटेशन किया. ठीक है, सो दैट इज़ अबाउट अ प्योर डिवोटी. प्योर डिवोटी नेवर हैज़ एनी सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप. उनको पता है कि ये दुनिया में जो भी है ये सब कृष्णा का है. आई एम जस्ट लाइक अ ट्रस्टी. मेरे पास थोड़े टाइम के लिए है, आई हैव टू यूज़ इट फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा.
और वो उनको जो चाहिए उतना ही लेते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्णा का है तो मैं मतलब लोभ करूँगा, ज़्यादा एक्यूमुलेट करूँगा, वैसा नहीं है। जितना उनको ज़रूरी है उतना ही वो लेते थे बस। तो ये डिवोटी का सिम्टम होता है। डिवोटी हमेशा उतना ही लेते हैं जितना उनको ज़रूरी है। वो कभी लोभ नहीं करते, कभी ग्रीड नहीं करते। सो एक बार प्रभु जी उनके सेशन में बोल रहे थे कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा धन है, ठीक है, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा धन है, और आपने अपने पास ही रखा है उसको, विदाउट गिविंग लिटिल बिट ऑफ दैट और सम पार्ट ऑफ दैट टू कृष्णा, देन दिस इज़ लाइक रावण's पॉलिसी। इन फैक्ट प्रभुपाद ऑल्सो सेज दैट रावण का पॉलिसी है दैट ही कीप्स लक्ष्मी विथ हिमसेल्फ ओनली, और अपने पास ऐसे रख देता है। बट अ डिवोटी इज़ नॉट लाइक दैट। अ डिवोटी इज़ लाइक हनुमान who delivers Lakshmi, Sita Devi to Ram. So it is generally recommended that devotees should always give some percentage of their income to Krishna. Otherwise जो रावण के क्वालिटीज़ है वो हमारे अंदर आ जाएंगे। So कलयुग में every person has divine qualities also, and every person has demonic quality, ठीक है। सो वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि ये पर्सन देवता है या ये पर्सन दानव है, ऐसा नहीं बोल सकते। एवरी पर्सन हैज़ बोथ द क्वालिटीज़। अगर हम गुरु साधु और शास्त्र के नियम के अनुसार चलेंगे तो हमेशा हमारे अंदर जो दैवी गुण है वो ही प्रकट होंगे। लेकिन हमने थोड़ा भी गलती की तो इमीडिएटली कली जो है वो हमारे अंदर प्रवेश कर लेंगे और हमसे सब डेमोनाइक चीज़ें करवाएंगे। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस एज ऑफ कली। सो कली से अगर बचना है तो देयर इज़ ओनली वन वे, चैंट दिस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो अगर आप महाभारत पढ़ोगे, सो महाभारत में कई सारे इंसिडेंट्स आते हैं जिससे बहुत कुछ हमें सीखने मिलता है, ठीक है। सो एक इंसिडेंट आता है नल, किंग नल का, ठीक है। सो किंग नल जो है वो बहुत ही अच्छे राजा थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनको कली ने पजेस कर लिया था। पजेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, जकड़ लिया मतलब हाँ, वश में कर लिया। जैसे कोई भूत अगर किसी के शरीर में वश कर लेता है तो कैसे होता है, वो पागल बन जाता है ना, वैसे कली जो है, कली जो कलयुग का जो डीमन है, उन्होंने नल महाराज को वश में ले लिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नल सब है ना गलत डिसीजन लेने लग गए। सो आजकल है ना लोगों को ये हमेशा आशंका रहती है कि हम जो डिसीजंस ले रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? तो इसका एक ही आंसर है, अगर आपको कली ने पकड़ लिया है, ठीक है, आपको अगर कली ने पकड़ लिया है तो आप जो भी डिसीजन ले रहे हो सब गलत ही है, ठीक है। सो आप महाभारत में पढ़ सकते हो नल और दमयंती का जो पास्ट टाइम है, तो उसमें आप देख सकते हो कैसे नल को कली ने पकड़ लिया था। उसके बाद से वो सिर्फ गलत कार्य ही कर रहे थे। सो मेरे मन में ये प्रश्न था कि हम कली से कैसे बचेंगे, क्योंकि नल जो थे वो पहले वाले युग में थे, द्वापर युग में थे, बट अभी तो हम कलयुग में हैं। कलयुग में कली जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो कई बार हमारे साथ ऐसे होता है कि हमें पता होता है कि कुछ चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए, बट ऐसा लगता है कि हमें बाय फोर्स कोई कुछ करवा रहा है, ऐसा लगता है, और हम वो गलत कार्य कर बैठते हैं। तो ये कली की वजह से होता है। तो जब मेरा दीक्षा हुआ था तो दीक्षा के बाद मैं मेरे गुरु महाराज से मिलने गया था। तो गुरु महाराज जनरली जो इनको दीक्षा देते हैं उनके बाद उनको बोलते हैं कि 4 बजे के बाद आइए, मेरे से मिलिए।
कुछ प्रश्न है तो हम पूछ सकते हैं। तो जब मेरा दीक्षा हुआ था तो मैं गुरु महाराज जी से मिलने गया था। फिर उनसे यही प्रश्न पूछा कि जैसे महाभारत में हम देखते हैं कि नल को कली ने पकड़ लिया था और इसके लिए वो सारे गलत डिसीजन ले रहा था। तो हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम चाहते नहीं हैं बट कली हमें इन्फ्लुएंस करता है, बहुत बार उसका होता है ऐसा। सो हम कली को हमेशा कैसे निकाल सकते हैं, हमेशा के लिए हमारे लाइफ से कैसे बाहर कर सकते हैं। हाउ डू वी एक्सोरसाइज कली परमानेंटली फ्रॉम आवर लाइफ, ठीक है। सो महाराज जी ने एक आंसर दिया। सो ही सेड यू विल हैव टू ऑलवेज चैंट द होली नेम्स ऑफ कृष्णा, ठीक है। ऑलवेज यू हैव टू चैंट। सो हम सोचते हैं कि दीक्षा हो गया, we have taken a vow of following the 4 regulative principles, we have taken a vow of chanting 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra, एक बार ये हो जाएगा तो हो जाएगा। Of course you will have some protection definitely, but if you want to be completely aloof from कली, अगर कली को एकदम भगाना है आपके लाइफ से, आपके बॉडी से भगाना है, तो you have to always chant the holy names of Krishna। हमेशा you will have to chant, otherwise there is no other way। सो कलयुग में भक्ति कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे ऐसे डिवोटीज़ है जो काफ़ी ऊंचे लेवल पे जाके फिर उनका मतलब थोड़ा फॉल डाउन होता है, फिर वापस ऊपर जाते हैं, वापस फॉल डाउन होता है, सबके साथ होता है। ये होता है क्योंकि हम कलयुग में हैं जहाँ पे कली का राज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कली सब जगह पे, आप 1 सेकेंड भी केयरफुल नहीं रहोगे वैसे ही वो आपके दिमाग में चले जाएगा। तो जैसे परीक्षित महाराज के भी दिमाग में चले गए थे, तो वैसे हमारे भी दिमाग में चले जाएगा और हमसे गलत कार्य करवाएगा और फिर वो धीरे धीरे हमें भक्ति से दूर लेकर जाएगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ कली। कली से दूर रहने के लिए वी हैव टू चैंट दिस हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि हम हमेशा कैसे चैंटिंग करें, राइट। हमेशा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सुबह हमारे पास टाइम है, सुबह उठ गए, हमने जो मॉर्निंग की जो भी प्रोसेस है वो कर लिया, फिर चैंटिंग कर लिया, फिर हम ऑफिस गए, बिजनेस कर रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे। हाउ डू वी चैंट द होली नेम ऑफ कृष्णा ऑलवेज, राइट। सो देयर आर मैनी वेज, ठीक है। अगर आप गीता में एक चैप्टर है ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, ठीक है। कितने लोगों ने पढ़ा है ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट? अच्छा। सो इसमें कृष्णा बताते हैं कि वो कहाँ पे है। सो कृष्णा कहते हैं कि अमॉन्ग ऑल द सोर्सेस ऑफ लाइट आई एम द सन, ठीक है। तो जब भी आप सूर्य को देखोगे तो इमीडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए कि दिस इज़ कृष्णा। फिर बोलते हैं आउट ऑफ ऑल द स्टार्स आई एम द मून। तो जब भी आप रात को बाहर जाओगे, मून को देखोगे, यू हैव टू रिमेंबर दिस इज कृष्णा। तो इसके लिए शास्त्र अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने हमें कितने सारे शास्त्र दिए हैं। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत, चैतन्य भागवत, फिर कितने सारे पुराण हैं हमारे पास, रामायण है, महाभारत है। तो ये सब अगर आप पढ़ोगे डेली अगर मतलब 2-3 पेज भी पढ़ोगे, सो इट विल हेल्प यू रिमेंबर कृष्णा। सो एक्सपीरियंस लेने के कई सारे वेज होते हैं। द बेस्ट वे टू टेक एक्सपीरियंस इज बाय हियरिंग और बाय रीडिंग बाय एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स। तो किसी ने कुछ गलती की है तो उनके गलती से सीखना बेटर है रादर देन वी मेकिंग द मिस्टेक आवरसेल्फ, ठीक है। तो इसके लिए शास्त्रीय अध्ययन बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग है ना बहुत ये गैजेट से इन्फ्लुएंस हो गए, मोबाइल से खासकर। तो सोचते हैं कि सब कुछ मैं मोबाइल में पढ़ लूँगा, मोबाइल में मेरे पास बुक है, मोबाइल में मेरे पास लेक्चर्स है, मोबाइल में यूट्यूब है, कुछ भी चाहिए मैं सर्च करूँगा, देखूँगा। बट अगर आपका जो माइंड है वो अगर आपके कंट्रोल में नहीं है
तो इससे आप है ना कभी कुछ लाभ नहीं उठा पाओगे। कि कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। अब जाओगे यूट्यूब पे कुछ सर्च करोगे, भी महाभारत सर्च करोगे, फिर पहुँचोगे उधर, फिर उधर भी आपको बहुत सारी चीज़ दिखेंगे, रिकमेंडेड वीडियो दिखेगा, फिर आप उधर क्लिक करोगे, इधर क्लिक करोगे, उधर क्लिक करोगे, ये देखोगे, वो देखोगे, वो देखोगे, ऐसा करके 3-4 घंटे चले जाएंगे। बाद में आपको पता चलेगा अरे मैं आया क्यों था, मोबाइल क्यों खोला था, ऐसे होगा। सो ये जो मोबाइल है ना, ये कली का बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन है। सो अगर आपको भक्ति में सच्ची में आगे बढ़ना है तो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दिस डिवाइसेस एज फार एज पॉसिबल। कम्प्लीटली तो नहीं रह सकते, इट इज़ नेसेसरी ऑल्सो, बट जितना हो सकता है आपको दूर रहना है मोबाइल से, सोशल मीडिया से, जितना हो सकता है दूर रहना है। और जितना हो सकता है कि यू हैव टू रीड फ्रॉम दिस फिज़िकल बुक्स, ठीक है, जैसे ये बुक है, राइट। सो ये फिज़िकल कॉपी से आप जब पढ़ते हो वो आपके दिमाग में ऐसा इम्प्रेशन बैठ जाता है। फिर आपको 10 साल 20 साल बाद भी अगर किसी ने कुछ पूछा तो आपको याद रहेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप मोबाइल में आप पढ़ोगे ऐसे गीता ऊपर नीचे करके, तो आज कुछ पढ़ोगे 2 घंटे बाद आप भूल जाओगे, वो रिटेंशन नहीं होता। सो इसके शास्त्र अध्ययन बहुत ज़रूरी है। शास्त्र अध्ययन ट्राई टू डू इट फ्रॉम फिजिकल कॉपी। सो भगवत गीता पढ़ना तो बहुत ही ज़रूरी है। आप में से कितने लोग भगवत गीता रेगुलरली पढ़ते हो? ओके, नहीं, सब बाकी डेली एटलीस्ट 1 श्लोक पढ़िए डेली। एवरी डे यू शुड रीड 1 श्लोक। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली आपको 3 to 4 मिनट्स देना पड़ेगा, उतना टाइम हमारे पास होता है। सो डेली 1 श्लोक सबको पढ़ना है भगवत गीता। जो भगवत गीता ऑलरेडी पढ़ते हैं दे शुड ऑल्सो ट्राई टू रीड महाभारत रामायण। महाभारत रामायण हो जाएगा तो श्रीमद् भागवतम। रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना रीडिंग करोगे, जितना हियरिंग करोगे, मोर यू विल बी इम्यूनाइज्ड। इम्यूनाइज को क्या बोलते हैं हिंदी में? मतलब इंजेक्शन देता है ना पोलियो से बचने के लिए, वैसे ये जो बुक्स है ये एक टाइप का वैक्सीन ही है, समझ लो। बुक्स एंड प्रसाद कीर्तन, दिस लाइक अ वैक्सीन which Srila Prabhupada has given for all of us. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? यस प्रभु। See, what happens when a very strong and devoted devotee of Krishna happens to come across somebody who is more towards Kali? Okay. So how does that happen, or how does that work? So आप बता रहे हो somebody who is a very highly elevated devotee comes in contact with someone who is fallen down. Sort of, yeah, or inclined towards Kali. Okay, so if the devotee is really potent, he can convert even that devotee into a devotee, even that person into a devotee. Take the example of Haridas Thakur. Haridas Thakur converted a prostitute into a devotee. So it all depends on the potency of the devotee. But however, we should not think that we are on that level. We should try to avoid such people. जितना हो सकता है we should try to avoid, stay away from them. ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी को? हाँ। मतलब 9 to 10 आवर्स हम ऑफिस में बिजी रहते हैं या फिर बाकी चीज़ों में, तो तब भी अगर हम कॉन्सेंट्रेट भी करें, मतलब वो देखिए वो माइंड से निकल जाता है कि मतलब बार-बार सोचे कि मैं ये बोलना है हरे कृष्णा, वो फोकस नहीं कर पाता। तो काम करते करते मतलब सिर्फ कृष्णा कृष्णा बोल सकते हैं। ठीक है। तो मेरे गुरु भाई है, उन्होंने इस उल्लेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज से ये क्वेश्चन पूछा था कि महाराज जी, हाउ डू वी बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअल लाइफ एंड कॉर्पोरेट लाइफ? बिकॉज दोनों जो है अपेरेंटली इट्स लाइक 180 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. सो महाराज जी हैज सेड कि यू जस्ट डू योर
मॉर्निंग साधना वेल, ठीक है, जो मॉर्निंग साधना है, मंगल आरती, जापा, दर्शन आरती, श्रीमद् भागवतम, ये अगर आप प्रॉपरली करोगे, सुबह सुबह उठ के अगर 4 घंटे आपने प्रॉपरली भक्ति की, तो आपको कुछ भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता भक्ति से, इतना गारंटी है। जितने भी भक्तों को प्रॉब्लम होता है डिवोशन लाइफ में, इसलिए होता है क्योंकि उनका जब मॉर्निंग साधना है वो प्रॉपरली नहीं होता। सो मॉर्निंग साधना अगर आप प्रॉपरली करोगे तो आपको दिन में सब चीज़ें दिख जाएगी, कैसे करना है, क्या करना है, खुद से कुछ आपको पता चल जाएगा। भगवान अपने से आपको अंदर से इंस्पायर करेंगे। सो कॉर्पोरेट में कैसा होता है कि जो लोग होते हैं जनरली, जो अपर मैनेजमेंट में होता है, वो दे आर वेरी हैवीली स्टीप्ड इन माया। सो उनको है ना, उनका दिमाग बहुत रेस्टलेस रहता है, वो बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। जो भी वो सोचते हैं वो बोलते हैं, और उनके सबॉर्डिनेट को बोलते हैं कि ये करो, वो करो, वो करो, वो करो करके सबको अननेसेसरी ओवरवर्क करवाते हैं। बट इफ़ यू आर इन भक्ति, इफ़ कृष्णा इंस्पायर्स यू फ्रॉम विद इन, आपको समझ जाएगी कौन सा चीज़ करना चाहिए मुझे, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि वो बोलते हैं आपको ये करना है, फिर वो खुद ही भूल जाते हैं। बट अगर आपको पता है कि कौन सा काम मुझे करना है, कौन सा नहीं करना है, या बाद में भी करूँगा चलेगा, तो आप जो करना चाहिए वो करके रिज़ल्ट भी जल्दी लेके आओगे। तो देन इट बिकम्स मोर एफिशिएंट। ये चीज़ें तभी होंगे जब हम हमारी साधना प्रॉपरली करेंगे, हम शुद्ध रहेंगे। व्हेन वी आर प्योर फ्रॉम विद इन, देन ओनली वी कैन हियर Krishna's voice from within. So in short, the answer is you have to do your morning sadhana very well, otherwise it's very difficult. और कोई प्रश्न है इसके? यस माता जी। हम लोग जब भक्ति करते हैं तो एक प्रभु जी ने कहा था कि हमारी भक्ति से हमारे पूरे कुल का कल्याण होता है। तो उस कल्याण का मतलब क्या है? कल्याण मतलब कई बार ऐसे होता है कि हमारे जो पूर्वज है, अगर उन्होंने कोई सिंफुल एक्टिविटीज़ किया है, अगर उनके पास उतना अच्छा पुण्य नहीं है, उतना अच्छा कर्म नहीं है, तो उनको जो नेक्स्ट शरीर मिलना रहता है वो नहीं मिलता है, या फिर उनका जन्म होता है कहीं बहुत ही नीच प्राणी में। ऐसा होता है, कई बार होता है। तो उन लोग उधर सफ़र करते रहता है, मतलब दे आर सफरिंग, दे डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट। तो तभी अगर उनका जो डिसेंडेंट है, उन्होंने अगर भक्ति किया, कोई यज्ञ किया, तो उनको वो पुण्य मिलता है, या फिर उनको भी वो कर्म मिलता है। तो जब उनको वो अच्छा कर्म मिलता है, या फिर जो भक्ति है नीचे से ऊपर मिलता है, तो उनका उद्धार हो जाता है। सो इसके लिए भक्ति करना जो है वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, नॉट जस्ट फॉर यू, इवन फॉर योर फोरफादर्स। सो अगर आपके पूर्वजों को आपको उद्धार करना है, बेस्ट वे इज़ यू चैंट हरे कृष्णा महामंत्र, फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए गुरु महाराज एज इट इज़। अगर आप इतना फॉलो करोगे तो आपका लाइफ तो अच्छा होगा ही, उसके साथ आपके जो पूर्वज है वो भी उद्धार हो जाएंगे। ठीक है। यस माता जी। प्रभु जी, उद्धार का मतलब उनको चांस मिलता है या उनको मुक्ति मिलती, इसका मतलब क्या होता है? डिपेंड करता है कि उनका डिसेंडेंट कैसा है। अगर प्रहलाद महाराज जैसे कोई शुद्ध भक्त है तो उद्धार भी मिल सकता है, बट हमारे जैसा कोई है तो उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इफ़ समबडी इज कॉट बिटवीन लाइफ एंड डेथ, कोई ऐसा स्पिरिट बन के घूम रहा है, तो उनको एक नया बॉडी मिलेगा। अगर कोई हेल में है तो उनको मे बी ह्यूमन बर्थ मिलेगा इन अ डिवोटी फैमिली और समवेयर वेयर डिवोटीज आर। सो उनको वो चांस मिलता है टू गो अहेड। ये चीज़ है। ओके, और कोई क्वेश्चन? ओके, सो प्रभुपाद जी का जो पर्पट है उसके लास्ट में कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, उस पर मुझे चर्चा करना था। सो कई बार कैसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि प्रभु जी मुझे पता है कि मैं जो करता हूँ, स्पेशली जो बिजनेसमैन होता है,
वो बोलते हैं कि मेरा जो बिज़नेस है दैट इज़ सिनफुल बिकॉज इसमें मैं चीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे करना ही पड़ता है, ऐसा कई बार बोलते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आप जो बेयर नेसेसिटीज़ है लाइफ का सिर्फ उतना आप लोगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कृष्णा ही अरेंज करके देंगे, ऐसा प्रोफेशन दे देंगे, ऐसा बिजनेस दे देंगे कि आपको सिंफुल एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो एक हमारे डिवोटी है लाइट ऑफ भागवत में, उनका भी ऐसे ही था। उनका जो प्रोफेशन था इनिशियली, वो प्रोफेशन ऐसा था कि वो कोई डिवोटी को नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रोफेशन था। और फिर वो आके मुझे पूछ रहे थे कि मेरा ऐसा प्रोफेशन है, मैं क्या करूँ, मुझे और कुछ आता नहीं है। देन आई टोल्ड हिम कि यू कम टू टेम्पल रेगुलरली टू चैंट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र, ट्राई टू कम इन द मॉर्निंग। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे करना है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको सिर्फ यही आता है, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं। कृष्णा नोज यू मच बेटर देन यू नो योर सेल्फ। सो वैसे करके वो 1 साल आए और फिर उनको ऑटोमेटिकली एक नया मतलब बिजनेस मिल गया कि इंस्टेड ऑफ दिस लेट मी चेंज माई बिजनेस टू दिस, जो कि उतना मतलब विच इज़ नॉर्मल, नॉट अ सिंफुल बिजनेस। तो ऐसे होता है। सो मेन थिंग इज़ दैट वी हैव टू बी कृष्णा कॉन्शियस। हमें ज़्यादा लोभ नहीं रखना है। अगर कोई डिवोटी है यहाँ पे आ रहा है और फिर सोच रहा है नहीं मुझे अंबानी ऐसा बनना है, तो देन इट्स नॉट पॉसिबल। आपको एक ही नाव में चल सकते हो, 2 अलग अलग नाव पे नहीं जा सकते, ठीक है। ऑलरेडी कोई अंबानी है तो अलग बात है, बट you cannot become very successful in material life and at the same time become very successful in spiritual life unless Krishna himself favors you, ठीक है। but generally ऐसा देखा गया है कि जो जिनको बहुत ज़्यादा material success मिलता है वो धीरे धीरे डेमोनाइक हो जाता है, ये देखा गया है। तो too much of material success is also not good, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? और भी चीज़ें कवर करने थे बट आई थिंक द टाइम इज़ ऑलरेडी अप, बट यू कैन टेक सम क्वेश्चंस 10 मिनट के लिए अगर किसी को कुछ है तो। यस, दिस इज माई डायरी, दिस इज माई डायरी। आई जस्ट मेक नोट्स ओवर देयर। सो आज जो पढ़ के आया था उसमें देखा है मैंने कि सारी चीज़ें कवर हुए कि नहीं है, बस वही देख रहा था। Only way to cut your previous karma is to take shelter of a pure devotee. So taking shelter, getting initiated, that's the only way. And ऐसा नहीं कि इनिशिएशन के बाद पूरा कर्मा गायब हो जाएगा। जब तक आप इनिशिएशन वाउस प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो तब तक आपके प्रीवियस कर्म आपको टच नहीं करेंगे। बट द मोमेंट वी डोंट फॉलो द इनिशिएशन वाउस स्ट्रिक्टली, they will again come back. So only way is to take shelter of a pure devotee, render service unto him and take initiation. That's the only way. Yes? आप मंत्र जाप कभी भी कर सकते हो, बेस्ट है कि आप हमेशा करो, लेकिन आपको स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से करना है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सनराइज़ के 1.5 घंटे पहले। तो यहाँ पे मुंबई में वो होता है 4:30 बजे के आसपास, वैसा होता है। तो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है चैंटिंग के लिए या फिर कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए। यस माता जी। नाइट शिफ्ट मतलब टाइमिंग क्या? जॉब चेंज करो और कोई वे नहीं है ऐसा, बिकॉज दैट इज़ अ टाइम ऑफ डीमंस। रात को है ना, जो डीमंस है, जो आसुर है, उनकी शक्ति बढ़ जाती है। तो वो टाइम पे अगर आप जागे रहोगे तो आप भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे कुछ डिवोटीज थे जो इनका पहले से नाइट शिफ्ट था, बट ग्रेजुअली उनको नया जॉब मिल गया। तो यू जस्ट हैव टू बी सिंसियर।
अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, मैं सोच रहा था आपके साथ शेयर कर लूँ। तो एक बार एक डिवोटी थे, उनको कुछ बुरी आदतें थी, ठीक है। ऑफकोर्स बुरी आदतें प्री डिवोशनल लाइफ में, मतलब भक्त बनने से पहले थे। फिर वो भक्त बन गए, वो मंदिर में आए, उनको चैंटिंग स्टार्ट किया, फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसेस स्टार्ट किया। तो उन्होंने बंद कर दिया, जो भी बुरी आदतें वो सब टोटली बंद कर दिया। लेकिन उनको है ना ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे में ना ड्रीम आता था, ठीक है, सपने आते थे, और वो सपने में वही बुरी आदत करते थे वो। तो ऐसे करके चलते गया, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, बट वो सपने आते रहे। तो उनको भी पता था कि ये मेरा प्रीवियस कर्मा है, उसके लिए शायद वो संस्कार है, उसके लिए सपने में आ रहे हैं। बट वो बहुत परेशान हो गए थे। फिर उन्होंने प्रभु जी से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कि मैं सब चीज़ें प्रॉपरली फॉलो कर रहा हूँ, मैंने सब छोड़ दिया, फिर भी अब सपने में अभी बुरी चीज़ें आ रही। तो तब प्रभु जी ने बोला कि एज पर योर प्रीवियस कर्मा, आपको है ना वो बुरी चीज़ें मतलब करने थे एज पर योर प्रीवियस कर्मा, बट बिकॉज यू केम हियर, ठीक है, टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, आप अभी वो बुरे कर्म से बच गए हो, लेकिन फिर भी है ना आपको उसका परिणाम भुगतना है। तो इसके लिए वो आपके सपने में आ रहा है। तो जब आप सपने देखते हो, आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ सच्चे में हो रहा है। किसी को एक्सपीरियंस है? जब भी एक बुरा सपना देखते हो, ऐसा लगता है कि सच्ची में हो रहा है। तो वो एक्सपीरियंस भी ऑलमोस्ट रियली होता है। तो जब भी एक डिवोटी भक्ति में आते हैं और उनके साथ कुछ अगर गलत होना रहता है, तो वो शायद नहीं होता है, बट उनके सपने में होता है, ये भी होता है। सो दैट इज़ हाउ कृष्णा टेक्स केयर ऑफ पास्ट कर्मा। सो हमें कुछ नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू सरेंडर टू कृष्णा, वी जस्ट हैव टू सरेंडर टू अ प्रॉपर अथॉरिटी, रेस्ट ऑल कृष्णा विल टेक केयर, वी डोंट हैव टू वरी। कृष्णा खुद ही आपको सब रास्ता दिखाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, आइदर हिमसेल्फ और थ्रू समवन, वो आपको बता देंगे। बट आपको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है, चैंटिंग है, जो भी नियम है, वो एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है, ओके, आई थिंक वी आर डन। अगर किसी को कुछ शेयर करना तो कर सकते हैं, वरना एल्स वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट। यस माता जी। प्रभु, I just want to add few things. यस। इसी बात। हाँ। जैसे हम लोग, क्योंकि मेरा इनिशिएशन हो गया, तो ये कुछ चीज़ें मैंने सुनी थी, तो अभी मुझे चीज़ें रियलाइज हुई और समझ में आ रही है। ओके। कि जब हम रिपीटेडली सुनते रहते हैं कि एक बार आपका इनिशिएशन हो गया, सो यू नो यू कैन कट ऑफ योर कर्मास एंड योर लाइफ गेट्स बेटर एंड ऑल दैट, बट मुझे ये चीज समझ में आई कि once you are initiated, it is not just getting initiated. गुरु के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो एक्चुअली जब हम फॉलो करते हैं, उसको जब हम लाइफ एंड सोल करते हैं, तो तभी एक्चुअली हमारा उद्धार होता है। हाँ, इसका रीजन ये है कि चलो हाँ इनिशिएशन ले गया, हो गया। इनिशिएशन एक्चुअली जैसे कहा जाता है कि इनिशिएशन का मतलब है इट इज जस्ट अ स्टार्टिंग। तो इनिशिएशन के बाद हम एक गुरु के शरण में आते हैं, और जब हम उनकी सेवा करते हैं, उनके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, भले ही वो कितने भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो, जब हम उनको फॉलो करते हैं, तो आई थिंक वहाँ पे सही चीज़ होती है कि वो जो उद्धार होता है, या फिर जैसे हमारे कर्मा से हमें प्रोटेक्शन मिलता है, ये होती है। ये एक बात ऐड करना था। हाँ, विच इज़ ट्रू, क्योंकि इनिशिएशन जो है इट्स नॉट अ वन टाइम सेरेमनी, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जब दीक्षा होती है तो वी आर एस्टेब्लिशिंग अ फॉर्मल कनेक्शन विथ आवर गुरु एंड द गुरु परंपरा, एंड दिस गुरु परंपरा गोस डायरेक्टली टू कृष्णा। सो इट्स लाइक अ कनेक्शन, जैसे एक इलेक्ट्रिकल वायर आप लगाते हो, एक प्लग लगा देते हो, ठीक है, समझ लो हम एक कोई इंस्ट्रूमेंट है और एक प्लग लगा दिया वहाँ पे, तो वो प्लग अगर चालू रहेगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, वैसा है। तो वैसे ही जब तक हम
इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं हमारे गुरु महाराज का वेरी स्ट्रिक्टली, तब तक हमें वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम आवर प्रीवियस कर्मा, फ्रॉम एवरीथिंग। बट अगर हमने वो प्लग बंद कर दिया, वो स्विच ही बंद कर दिया, फॉलो करना बंद कर दिया, तो इट्स लाइक ऑफ नो यूज़। वो कनेक्शन तो है बट इट्स अ डेड कनेक्शन। तो वैसे होता है। सो इनिशिएशन के बाद डेफिनेटली कर्मा चले जाता है, गुरु टेक्स अवे द कर्मा, बट देयर इज़ अ कंडीशन दैट वी आर सपोज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर गुरु 100% एज इट इज़, एंड वी आर सपोज टू मेक the instructions of our guru as our life and soul, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहता। तो then only we are protected, otherwise there is no meaning of initiation। कई बार devotees ऐसे आते हैं और बोलते हैं कि प्रभु जी I want to get initiated, मुझे दीक्षा लेना है। फिर दीक्षा लेके वो they become complacent, they don't do service, and then it's of no use। It's better not to be taking diksha rather than taking diksha like that। Diksha is not the goal, it is the beginning, it's initiation। आपने एडमिशन लिया है स्कूल में, बट एडमिशन लेना इज़ नॉट गोल। एडमिशन लेके आगे बढ़ के डिग्री लेना, दैट इज़ द गोल। वैसा होता है। ओके, और भी किसी को क्वेश्चन है तो यू कैन डिस्कस ऑफलाइन। सो अभी इसके बाद प्रसादम होगा। प्रसादम है वृंदावन हॉल में। बाय द वे, आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम आए आज? कोई फर्स्ट टाइम आया? ओके, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी। सो हमारा जो प्रोग्राम है हर सैटरडे संडे होता है 5 से 6। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें आप जुड़ सकते हो। सो दीप्ति माता जी, आप इनको बता सकते हो अबाउट आवर प्रोग्राम, ठीक है? और ये जो सेशंस है वीकडेज़ में ऑनलाइन भी होता है, शाम को 8 से 9 बजे। और मंदिर में जो सेशन होते हैं सैटरडे संडे होते हैं और वेडनेसडे होता है। सैटरडे संडे को 5 से 6 भगवद गीता क्लास होता है, और वेडनेसडे को 8 से 9 मंदिर में ही चैतन्य चैतन्यमित क्लास होता है। तो आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी एडेड हो तो आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, ठीक है? ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।